السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بالکنڈل قسم علی کے ویلپور منڈل کے پاس انگسپور سیلابی نہر و پائپ لائن کاموں کا ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے افتتاح عمل میں لایا۔ تلنگانہ کے کسانوں کو 24 گھنٹے دی جانے والی مفت برقی کو برخاست کرنے کی نیت رکھنے والے کانگریس پارٹی پر BRS MLC کے کویتا نے کیا برہمی کا اظہار۔ کسانوں کو 24 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے مفت برقی دینے کے تعلق سے ریونت ریڈی کے بیان پر متحدہ ضلع کے کسانوں نے احتجاجی دھرنا منعقد کیا۔ وہ TRS کے زیر نگرانی منڈل سے متعلقہ موضوعات میں ریونت ریڈی کا علامتی پتلا کیا گیا نظر آتش۔ ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی نے حیدرآباد کے کیمپ آفس میں ماکرول منڈل کے سابقہ سرپنچوں کے ساتھ دیگر ترقیاتی کاموں کے تعلق سے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ تعلیمی شعبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بائیں بازو طلبہ یونین کے زیر نگرانی میں ضلع میں تعلیمی اداروں کا بند کامیاب رہا۔ بینڈورا منڈل کے مختلف موضوعات میں ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے کیا طوفانی دورہ، مختلف موضوعات میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے مسجد کے افتتاح کی تاریخ کا ریاستی وزیر اعلیٰ نے کیا اعلان۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے آج سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں نو تعمیر شدہ سیکریٹریٹ میں تعمیر شدہ مسجد، مندر اور چرچ کے افتتاح کی تاریخ کے علاوہ دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ تینوں مذاہب کے پیشواؤں سے مشاورت کے بعد افتتاح کی تاریخ کو خطیت دی گئی ہے، جس کے مطابق 25 اگست کو تینوں عبادت گاہوں کا افتتاح ایک ہی دن عمل میں لایا جائے گا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ خود تینوں عبادت گاہوں کا افتتاح کریں گے۔ سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کی جانب سے جسمانی معذورین میں صداقت نامہ اور فری بس پاس کی تقسیم۔ سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کی جانب سے 2 جسمانی معذورین میں معذوری کا صداقت نامہ اور 2 فری بس پاس تقسیم۔ محمد صابر حسین صدر سارا فاؤنڈیشن کے ہاتھوں ایک 9 سالہ لڑکی اور ایک 28 سالہ عشرت عمرانہ کے حوالے ان کی رہائش گاہ پر فراہم کی گئی۔ اس موقع پر محمد صابر حسین بانی و صدر سارا فاؤنڈیشن نظام آباد نے بتایا کہ ان کی تنظیم جسمانی معذورین کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے، جس کے باعث معذورین حکومت کی اسکیمات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی معذورین کسی قسم کے درپیش مسائل کا سامنا کرنے پر ان کے سیل فون نمبر 9440927646 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ سارا فاؤنڈیشن والے ویب سروس کے صدر سبھی کو ایزیلی اویلیبل ہوگا۔
شکریہ کرنا چاہتے ہیں آپ کا، جزاک اللہ، تھینک یو انڈیا سے۔ اوورسیز اسکالرشپ میں باز ادائیگی کے بقایا جات اور اقلیتوں کے قرض جات کی رقم فوری جاری کرنے عہدیداروں کو ہدایت۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے مجلس قائدین کی ملاقات۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اوورسیز اسکالرشپ فیس باز ادائیگی کے بقایا جات اور اقلیتوں کے قرض جات کی فوری جاری کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس مقننہ پارٹی جناب اکبر الدین اویسی نے پیر کی شام چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ بعد ازاں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے میڈیا کو بتایا کہ اوورسیز اسکالرشپ فیس ریمبرسمنٹ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن سے لون اور دیگر اسکیموں کے لیے 310 کروڑ روپے آئندہ 3 یا 4 دن میں جاری کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں سیکریٹریٹ کی مساجد کے ساتھ ساتھ وہاں تعمیر ہونے والے دیگر مذہبی عمارتیں بھی عوام کے لیے عنقریب کھول دی جائیں گی۔ اجلاس میں جناب اکبر الدین اویسی کی جانب سے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو محکمہ اقلیتی بہبود کی کارکردگی سے تفصیلی طور پر واقف کروایا گیا۔ جناب اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر کو بتایا کہ گزشتہ مالی سال کے 124 کروڑ روپے اور جاریہ مالی سال کے 150 کروڑ روپے مائنرٹی سبسڈی لون کی خاطر مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کو فراہم نہیں کیے گئے۔ انہوں نے چیف منسٹر سے خواہش کی کہ اس میں اضافہ کرتے ہوئے جملہ 310 کروڑ روپے جاری کیے جائے، جس سے چیف منسٹر نے اتفاق کیا۔ 19، 12 اور 26 جولائی کو صدرم کیمپ کا انعقاد۔ ضلع دیہی ترقیاتی عہدیدار DRDA نظام آباد کے پریس نوٹ کے بموجب سرکاری دواخانے نظام آباد میں 12، 19، 26 جولائی کو صدرم کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ صدرم کیمپ میں شرکت کرنے والے جسمانی معذورین 11 جولائی کو می سیوا سینٹر کے ذریعے اپنی سلاٹ بکنگ کرواتے ہوئے رسید مقام تاریخ کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ جسمانی معذورین اپنے ہمراہ میڈیکل رپورٹ، ایکس رے اور اپنے ہمراہ ایک اٹینڈنٹ صدرم سرٹیفکیٹ تجدید کرانے والے اپنے سابقہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ صدرم کیمپ کے اختتام سے پہلے اپنی رینیولز کروا لیں۔ رینیول نہ کرانے پر ان کے آسرا وظائف کی منظوری روک دی جائے گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نیم از محمد صابر حسین، سارا فاؤنڈیشن پریزیڈنٹ اینڈ فاؤنڈر۔ آپ لوگوں کو یہ اہم خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ کل 11 تاریخ کے دن صدرم سلاٹ بکنگ اوپن کیا گیا ہے۔ آپ لوگ قریبی میں سیوا جا کر سلاٹ بک کرا سکتے ہیں۔ اس مہینے کی 12 تاریخ، 19 تاریخ، 26 تاریخ کے دن گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایگزامن کیا جائے گا۔ ایگزامن کے جب آپ ڈاکٹرز کے جو بھی میڈیکل رپورٹ سے لے جائیے۔ جزاک اللہ۔ میڈیکور ہاسپٹل کے ڈاکٹرز و طبی عملے کی مجلس اتحاد المسلمین ڈویژن نمبر 33 کے کارپوریٹر محمد مستحسین گو یوتھ لیڈر محمد محسن نے ان کی بے لوث خدمات پر پیش کی تہنیت۔ نظام آباد علامہ گٹے میں واقع میڈیکور ہاسپٹل جو گزشتہ کئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، آج شہر نظام آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ڈویژن نمبر 33 محمد مستحسن نے مجلس یوتھ قائد محمد محسن کے والد محترم محمد مبین صاحب کی کامیاب اوپن ہارٹ سرجری عمل میں لانے پر ان کی جانب سے ڈاکٹرز و میڈیکل عملے کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا اور عوام سے ان کی خدمات کو استفادے کی اپیل کی۔ بودھن رکن اسمبلی کے قتل کے الزام میں ملوث دونوں کونسلر کو عدالت کی جانب سے دی گئی راحت۔ ان کی رہائی پر مجلس قائدین نے کیا ان کا شاندار استقبال۔ بودھن رکن اسمبلی شیخ العامر پر قاتلانہ حملے کی سازش کے الزام میں گزشتہ کئی دنوں سے عدالتی تحویل میں رہنے والے مجلس اتحاد المسلمین بودھن کے 2 نمائندہ کونسلرز کو عدالت نے دی راحت اور ان کی رہائی پر نظام آباد و بودھن کی مجلسی قائدین نے ضلع جیل پہنچتے ہوئے ان کا استقبال کیا اور ان کی شال پوشی گلپوشی انجام دی اور ان کی عوامی قائدانہ صلاحیتوں پر ان کو مبارکباد پیش کی۔ انچارج کونسلرز نوید رضا اور شیخ الطاف نے اپنی رہائی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ان کی رہائی میں صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی بڑی کوشش رہی اور مسلسل وہ ان کی رہائی کے لیے فکر مند رہے۔ مجلس کونسلرز نے اپنی صفائی میں کہا کہ ہماری جانب سے کسی بھی قسم کا قاتلانہ حملے کی سازش نہیں کی گئی۔ ہم کو صرف اور صرف عوام کے حق کی آواز اٹھانے کی سزا ملی ہے، جس سے ہمارے حوصلے کمزور نہیں اور بھی مضبوط ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر سے عوامی مسائل کو اٹھاتے رہیں گے۔ اس موقع پر ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان بودھن، صدر مجلس مشیر بابا بودھن کے کونسلر و نظام آباد کے مجلسی کارپوریٹر ماجد صدیقی، محمد نصیر، شیخ سلیم، ریاض احمد، عبدالغفور مقیم، ٹاؤن معتمد، شہباز احمد، میر پرویز علی، سید رفیع کے علاوہ نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سب سے پہلے تو صد شکر اس شان خداوندی کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور تمہاری جان ہے۔
अल्लाह का फजल व एहसान है कि आज हम रिहाई का परवाना लेकर निकले हैं। बादयाँ अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का। और रही बात ये जो केस है, ये हक़ को दबाने, सच्चाई को दबाने के लिए इस तरह सियासी हरबों का इस्तेमाल करते हुए अवाम में एक नए ख़यालात और सियासी मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलिस के अदना से कारकुन हैं। हमारी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये शेवा रहा है कि रोज़ अजल से हक़ के मामले में और अवाम के हुकूक़ को बहाल करने में कोशिश करती रही है, करती रहेगी, करना चाहिए। यही अज़्म लेकर हम दो नुमाइंदा काउंसलर शकील आमिर साहब के रूबरू होकर बात किए, मगर वो हमारे सवालात से भागने के लिए इस तरह के सियासी हरबे इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम जाने के बाद 2 रकात शुक्राना अदा करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम एमएलए साहब से रूबरू गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त कुदरती तौर पर किसी किस्म की छींक नहीं आई। अगर आती तो न जाने और कितने सेक्शन लगते पता नहीं। कि इस कदर मेरे शहर को वादे हुए नसीब, इस कदर मेरे शहर को वादे हुए नसीब कि घबरा के झूठ ने शहर ही बदल लिया। हम यकीनन भोदन के अवाम से अपील करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। जो आदमी अवाम के हक़ की बात करता है, अवाम के काउंसलर अवाम की नुमाइंदगी करता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। बहरहाल एक जुनून है, एक नशा है, वो नशा इंशाअल्लाह आगे निकलेगा। और ये पुलिस वाले जो उसके शकील आमिर के इशारों पे काम किए उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उनका भी मुहासाबा किया जाएगा यकीनन। और आखिर में मैं फिर से एक बार भोदन की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने MIM की खुलकर हिमायत की, और उनके वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसे औलाद को पैदा किया, जिन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। इंशाल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे। नौजवान यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाए और जल्द से जल्द अवाम की दरख्वास्त लॉ कमीशन तक पहुँचाए, मौलाना क़य्यूम शाकिर की अपील। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंडम करने के लिए नौजवान तबके को आगे आकर बाजारों और चौराहों पर बाज़ाब्ता मुहिम के तौर पर QR कोड स्कैन कराने और इस बिल के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करवाने के लिए जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल हिंद ज़िले निज़ामाबाद जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी ने अपील की। इन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 46 लाख ईमेल लॉ कमीशन को महसूल हुए हैं, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। इन्होंने जल्द से जल्द अपने रद्द अमल का इजहार करने के लिए तमामी नौजवान व अवाम से अपील की। वो सिर्फ 46 लाख हैं, तो 46 लाख थाउजेंड। तो हम गुजारिश करते हैं हमारे शहर निज़ामाबाद के और तमाम ही मुसलमानों से कि जहाँ तक हो सके इसके अंदर हिस्सा लें और असबाब के तौर पर हम जितना कर सकते हैं इसके अंदर काम करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस मुल्क की और मुल्क में रहने वाले तमाम ही बाशिंदगान की हर किस्म के शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाएँ। और हम ख्वाहिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भी सड़कों पर और गलियों के अंदर और बाज़ारों में और दुकानों में पहुँच कर इस QR कोड को अपने हाथ में लेकर जाकर के स्कैन करा दें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लॉ कमीशन तक अपने जवाब को दाखिल कर सकें। कांग्रेस अक़लियती इंचार्ज ML लतीफ़ की शहर भैंसे में दीनी मदरसे महदुल अबरार में हुफ़ाज़ व उलमा इकराम से मुलाकात। कायद कांग्रेस ने उलमा इकराम से मुलाकात करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की भरपूर तायद की अपील की। इन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पार्टी हाई कमान जिसको भी उम्मीदवार मुंतखब करे इस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिताने के लिए जद्दोजहद करेंगे। मज़ीद कहते हुए इन्होंने तमाम तबक़ात के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर मोहब्बत की दुकान को कायम करते हुए इस बार कांग्रेस सरकार लाएंगे, क्योंकि अवाम मौजूदा हुकूमत से बेजार हो चुकी है। महंगाई आसमान को छू रही है, जिससे गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो गया है और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा, वक्फ बोर्ड, जुडिशियल पावर, कई ऐसे वादे बर्फदान की नजर हो गए जिसको आज तक भी मुकम्मल नहीं किया गया। आखिर में इन्होंने मदरसे के जिम्मेदारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होने पर तमाम मसाइल पर गौर फिक्र करते हुए पार्टी की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। बातज़ा मौसम को मुंतज़िमीन मदरसे की जानिब से भरपूर तायद का तयक़ुन दिया गया और इनकी पार्टी परचम तले दे रहे अवामी खिदमत की सराहना करते हुए दुआओं से नवाजा गया। लम्हा आखिर में उलमा कराम की जानिब से ML लतीफ़ को शालपुशी के जरिए तहनीत पेश की गई। ML लतीफ़ ने उलमा कराम के इस इक़दाम से खुशी और मसरत का इजहार करते हुए मुफ्ती गनी क़ासिमी, ज़िले सदर जमीयतुल हिंद मौलाना सलमान, इमाम व खतीब मदीना मस्जिद हाफिज अब्दुल लतीफ़, इमाम व खतीब मस्जिद पंजशा मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
रियासती हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भैंसे का एहतजाज। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हल्का असम्बली मुधुल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज शिंदे आनंद राव पटेल की ज़ेरे क़यादत भैंसा दफ्तर महकमे बरक़ी के रूबरू रियासती हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नज़रातिश किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बातज़ा शिंदे आनंद राव पटेल ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि BRS पार्टी ने मुफ्त बिजली के बारे में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी के दिए गए बयान के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रेवंत रेड्डी ने अमरीकी NRIs के एक इजलास में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बरक़ी की खरीदारी में हुई बेकायदगियों के बारे में अपना इजहार ख्याल पेश किया था। BRS कायदीन को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ही दौर में इख्तिदार में काश्तकारों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही की शुरुआत हुई, जबकि YS राजशेखर रेड्डी किसानों के लिए मुफ्त बिजली के लिए एहतजाज कर रहे थे, तो तब KCR चंद्रबाबू नायडू का काबिनेट में रहकर सिर्फ तमाशाही बने रहे। कांग्रेस पार्टी किसानों से किए गए वादे के मुताबिक मुफ्त बिजली की सरबराही के लिए पाबंद रहे। कांग्रेस पार्टी किसान डिक्लेरेशन जारी करेंगी और वादे के मुताबिक काम करेंगे। KTR किसानों को गुमराह करने के लिए ऐसी सस्ती सियासत कर रहे हैं और BRS हुकूमत 24 घंटे मुफ्त बिजली के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। आप किसी भी बरक़ी सब स्टेशन पर जाकर मालूम करें तो पता चलेगा कि किसानों के लिए 12 घंटे मियारी मुफ्त बिजली की सरबराही नहीं हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर कायद अहमद खान, हवलदार गुजराम, भूमन्ना टाउन सदर भैंसा, रमेश भैंसा, मंडल सदर के अलावा कांग्रेस पार्टी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఇదే వ్యవస్థ ఇప్పటివరకు నడుస్తుంది. వీళ్ళు చేసింది ఏం లేదు, వట్టిగా ఓట్ల లబ్ధి కోసం చెప్పడం. మరి రైతులకు ఎన్ని రకాల మీరు మోసం చేస్తారు? ఉచిత యూరియా ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు, ₹1 తలగకుండా యూరియా ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు. మరి ఈ రోజు వరకు తెలంగాణ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఒక్క ఇత్తు అన్న మరి పిరిల ఇవ్వడం జరిగిందని నేను KCR గారికి KTR గారికి అడుగుతాను. ఎందుకు దొంగ హామీలు ఇస్తారు మీరు? దళిత బంధు అన్నారు, ఎన్ని గ్రామాలకు ఇచ్చిండ్రు? ఎందరో మంది ఇప్పుడు మరి దాంట్లో ఏదో ఆప్షన్స్ పెట్టి ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టి ఒట్టిగా అలా డబ్బులు వేస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇటువంటి పరిస్థితి ప్రజలకు రైతులకు దేనికోసం మోసం చేస్తున్నారు? దళిత బంధే సరిగా కాలేదు. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकोंडा मंडल के तमाम मौज़ूआत में मौज़े के सुदूर के ज़ेरे निगरानी में TPCC के सरबराह रियासती PCC सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकोंडा मंडल के किसान नगर, वेनलबी, बोदेपल्ली, चिट्टापुर, जलालपुर, नागपुर, इतवारपेट, श्रीरामपुर, बुसापुर देहात में मौजे के सुदूर के ज़ेरे निगरानी में TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का BRS मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने इजहार किया और कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के बजाय 3 घंटे बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाए जाने वो किसान मुखालिफ बातें करने के पेश आज TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौजे के सदर A शरद, कोटगी श्रीकांत चारी, नौमुला मोहन, N सायना, G प्रदीप, A नरसैया, A श्रीनिवास, P मोहन, T वंशी, सरपंच M तुलसी नागाभूषणम, N रवि, गोवर्धन गौड, G कल्पना, P लिम्बाद्री, MPTC अनुगुला रामराज गौड, EP नारायणा, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड, K मुरली, N राजेंद्र, P गंगाधर, रैतु सामान्य समिति सदर नागोलापल्ली राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन नागोलापल्ली सूरज रेड्डी, रैतु बंधु मौजे के सदर लिंगम, P गंगा रेड्डी, G मोहन रेड्डी, BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान व किसानों ने शिरकत की। मुप्काल मंडल के मुकाम पर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत अवामी नुमाइंदों ने शजरकारी अंजाम दी। मुप्काल मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इंसानी आबादी में जिस तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह माहौलियात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इसीलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो माहौलियात की हिफाजत के लिए आगे आए, ताकि पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन्हें एक दरख्त में तब्दील करने में अपना अहम रोल अदा कर सके। इन्होंने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, आइए पौधे लगाएं, आइए माहौल की हिफाजत करें। इन्होंने कहा कि हमको चाहिए कि हम पौधों की शजरकारी और इसकी निगहदाश्ती बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक पौधा जब दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है तो इससे हासिल होने वाली ऑक्सीजन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के भी बेहतर और कारआमद साबित होता है। इन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से
पौधों को भी लगाना चाहिए और जिस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में कमी पेशी पर नज़र रखते हैं, ठीक इसी तरह पौधों को पानी, खाद और इसकी देखभाल करना हमारा एक अहम फरीज़ा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में सरसब्ज़ और शादाब माहौल को फ़रोग़ देने के लिए कई तरह के इक़दामात को रूबे अमल में ला रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी माहौल को सरसब्ज़ बनाने के लिए मुतहरिक हो जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजर प्रणय चंदर, अविनेश रेड्डी, बी स्वामी, पेट्रोलिंग एम्बुलेंस की टीम व दीगर वर्कर्स ने शिरकत की। जगतियाल के एल रमन्ना के अफराद ख़ानदान से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। जगतियाल MLC रमन्ना के वालिद गंगाराम का हाल ही में इंतकाल होने के बायस रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी जगतियाल में एल रमन्ना के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दी। वो इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ मुकामी MLA संजय कुमार, पेद्दापल्ली MP वेंकटेश व दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद। भीमगल मंडल के मुख्तलिफ देहात में BRS पार्टी कायदीन के ज़ेरे निगरानी में PCC चीफ रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर रायतु बंधु समिति मंडल सदर बदावत शर्मा नायक के ज़रिए निगरानी में TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वोट बराए नोट मामले में मुलविस होते हुए अहम तरीन किरदार अदा करने वाले रेवंत रेड्डी की जानिब से किसान मुखालिफ पॉलिसियों से गुरेज करने का इंतबाह दिया। वो तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए न सिर्फ फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, बल्कि इन स्कीमात के समरात से किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अहदेदारान को मुतहरिक करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा MPTC, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। कोरटला में कांग्रेस कायदीन और कारकुन हुए CM KCR का पुतला जलाने में नाकाम। कोरटला में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने KCR का पुतला जलाने में नाकाम। कांग्रेस के कायदीन ने KCR के पुतले को जलाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में कोरटला पुलिस वहां पहुंचकर KCR के पुतले को जलाने से रोक दिया और कांग्रेस के कायदीन नाकाम हुए। इस मौके पर मंडल सदर ने कहा कि KCR का किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम करने का वादा धोखा है। KCR किसानों को सिर्फ 10 या 12 घंटे बिजली देकर किसानों को धोखा दे रहे हैं। प्राइवेट पावर कंपनियों से महंगे दामों बिजली खरीद रहे हैं, कीमतें और किसानों के नाम पर प्राइवेट कंपनियों से कमीशन हासिल कर रहे हैं। KCR जो रियासती सदर रेवंत रेड्डी से हजम नहीं हो पाते हैं, रेवंत रेड्डी के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और BRS पार्टी के कायदीन पर तनकीद की कि वो झूठी मुहिम चलाकर सियासत कर रहे हैं और कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर मुफ्त बिजली में इजाफा करेगी। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाने की साजिश, तब भी किसान इस यकीन नहीं करेंगे। कायदीन ने याद दिलाया कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने किसानों के लिए 9 घंटे मुफ्त बिजली की स्कीम मुतारुफ करवाई थी और मुश्तरका रियासत में किसानों के 70,000 करोड़ और मुश्तरका रियासत में किसानों के 12,000 करोड़ के कर्जे मुआफ करने का क्रेडिट में दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। किसान का 1 लाख रुपए का कर्ज मुआफ किए बगैर, तमाम दलित रिश्तेदारों को दिए बगैर, मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद दिए बगैर, BRS को 1 लाख रुपए देने की उम्मीद लगाए बगैर और अभी तक नहीं देना, बेरोजगारी फायदा 3016 की तकसीम, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों के बगैर, रिटायर्ड मुलाजमीन को बर वक्त पेंशन ना देना, तलबा को फीस की अदायगी के बगैर। इन्होंने मुतनबा किया कि TRS कायदीन जो तमाम अवाम को धोखा दे रहे और अवाम को गुमराह कर रहे। रेवंत रेड्डी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा करना और हुकूमत ना कर पाना अवाम खुद होगी। इस प्रोग्राम में कोटला सदर T गंगाधर, नायब सदर मोहम्मद नईम और दीगर ने हिस्सा लिया। ఎక్కడైనా ఏ ఊర్లో కానీ ఎక్కడైనా రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా వాళ్ళు 24 గంటలు ఇచ్చినట్టు రుజువు చేసినట్టయితే కాంగ్రెస్ తరపున మేము దేనికైనా పక్కా ఉంటాము. ఇలాంటి అబద్ధ మాటలు, మోసపూరిత మాటలు చెప్పొద్దు. ఎక్కడైనా ప్రతి రోజు రాత్రి సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి దాదాపు 12-1 గంట వరకు కట్ చేస్తుండ్రు 3 ఫేస్ లైన్. ఎప్పుడో రాత్రి వస్తుంది. ఒకవేళ రైతుల గిట్ట ఆటోమేటిక్ స్టార్టర్లు లేనట్టయితే ఈరోజు రైతులు ఎందరో నష్టపోదురు. మీరు అబద్ధాలు మాని 24 గంటల కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామని అంటున్నారో 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా రైతులకు కాంగ్రెస్ पोचमपहाड़ के RP फंक्शन हॉल में स्टेट तेलंगाना फिशर्स कमिश्नर लच्चीराम भोकैया के ज़ेरे निगरानी में माहिगीरों को मछलियों के अफजाइश के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। पोचमपहाड़ में वाक़िब RP फंक्शन हॉल में स्टेट तेलंगाना फिशर्स कमिश्नर लच्चीराम भोकैया
की ज़ेर निगरानी में माहिगिरों को मछलियों के अफजाइश के तारों से शौरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में माहिगिरों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है और माहिगिरों को बैंक के खर्चाजात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से खवातीन को 60%, मर्दों को 40% सब्सिडी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। పెట్టుకోవచ్చు మీ సంఘానికి ఒక చిన్న ఐస్ ప్లాంట్ ఒక 10 లక్షలు 15 లక్షలు 20-25 లక్షలతోనే ఒక ఐస్ ప్లాంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఒక ఆఫీసు, ఒక ఐస్ ప్లాంట్, ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్, ఇవన్నీ కూడా మీరు మీకు కావాల్సినట్టు పెట్టుకొని ఇంకోటి ఒక ఇన్సులేటెడ్ వెహికల్స్ మన స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, PMMSY స్కీమ్స్ కానీ BRS స్కీమ్స్. कालेश्वरम ज़खायर आप का मुशाहिदा करने के लिए किसान जोख दर जोख जाए मुकाम पर पहुंचने के बायस हलचल नजर आई। बालकुंडा अलखसमली में वाक़ सैलाबी नहर के तहत रिवर्स आने वाले कालेश्वरम आबी ज़खायर को देखने के लिए कमरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले किसान खुसूसी बसों के जरिए जाए मुकाम पर पहुँच कर मुशाहिदा करें। कमरपल्ली से 3 बस और नागपुर उपलूर राजेंद्र नगर से 2 बसों के जरिए तकरीबन 300 से ज़ायद किसानों ने मुबकल रिवर्स पंपिंग ज़खायरात के मंजर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतख़ाबात में CM KCR को भरपूर तायद फ्राहम करने का इजहार किया। పథకాల ద్వారా మరి చెరువు నింపుతున్నారు. మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మరి రైతులకు మాకు ఎంతో సంతోషపడతా ఉన్నాం. ఇవాళ మరి రైతుల కోసం మరి ఎంత కష్టపడుతున్నా ఆనాడు చెప్పినటువంటి ఉద్యమాలు చెప్పినటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో తను తూచ తప్పకుండా ఇవాళ రైతుల కోసం చేస్తున్నటువంటి మన కేసీఆర్ గారికి మరి రైతుల పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. बालकुंडा हल्का असम्बली के वेलपुर मंडल में वाक़ सैलाबी नहर व पाइपलाइन का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बालकुंडा अलखसमली में वाक़ वेलपुर मंडल अंसापुर के पास मौजूद सैलाबी नहर से गांव का तालाब व धर्मा रेड्डी तालाब के साथ साथ बंजनी कुंटाला को आबादी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए तकरीबन 29.92 लाख रुपये माली रकम से जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए पाइपलाइन के अलावा मोरतार मंडल डोनकल के पास सैलाबी नहर से राजुला कुंटा व बड़ा तालाब व माला कुंटा तालाब को सैलाबी नहर के तहत पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए तकरीबन 33 लाख रुपये माली रकम से क़याम अमल में लाए गए पाइपलाइन का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना के किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाने के साथ रियासत के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के अलावा फसलों की काश्त करने के लिए सरमाया फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा किसानों की कसीर तादाद में शिरकत की। దీనికి ఈ ఊరు నాది, ఈ ఊర్లో ఆ సర్పంచ్ ఉన్నాడు, ఈ ఊర్లో ఎంపీటీసీ ఉన్నాడు, అట్లా ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా ఈ నియోజకవర్గం ఈ పార్టీ నియోజకవర్గం అట్లా ఏం సంబంధం లేదు. కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న అన్ని కార్యక్రమాలు అన్ని నియోజకవర్గాలకు, అన్ని మండలాలకు, అన్ని గ్రామాలకు, ప్రతి ఇంటికి రాజకీయాలతోటి సంబంధం లేకుండా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా కూడా మీ అందరి కళ్ళతో చూస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ రైతులకు కావాల్సిన నీళ్లు ఇవాళ తీసుకొచ్చినాం, కరెంటు ఇవాళ తీసుకొచ్చుకున్నాం, పెట్టుబడి సాయం టంచన్గా పడతా ఉన్నది. ఈ దేశంలో ఎవరు కూడా పెట్టినటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలు, గ్రామాన కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి 15 రోజుల లోపల FCA నుంచి డబ్బులు రాకున్నా లేట్ అయినా मेंढोरा मंडल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मेंढोरा मंडल का दौरा करते हुए मेंढोरा से वेलकटूर स्कूल तांडा रोड का 2.80 करोड़ रुपए माली रकम से संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में शिरकत करते हुए 3.67 करोड़ रुपए के मसाले से NH7 से NH16 विया डोनकल रेंजरला सावेल गोड़ी चिरला चकिरियाला बीटी रोड तामीरी 9 प्रोग्राम में शिरकत की और इसी तरह से चकिरियाला देहात में 1.15 करोड़ रुपए माली रकम से चकिरियाला से दोदगाम तक बीटी रोड की तामीरी कामों के इफ्तिताह पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत की और दोदगाम देहात में 1.13 करोड़ रुपए मसारिफ से दोदी गांव से काकतिया केनाल ब्रिज तक बीटी रोड तामीरी कामों के इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में शिरकत की बात रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि CM KCR की दूरअंदेशी के पेश नज़र बालकुंडा अलखसमली में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया और आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। जिला BRS सदर आरमूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद के कैंप ऑफिस में माकलूर मंडल के साबिका सरपंचों से तरक्याती कामों के ताल्लुक से जायजा इजलास मुनाकिद किया।
आर्मर रकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले BRS सदर जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ कैंप ऑफिस में मागलूर मंडल के साबिक़ा सरपंचों से इजलास मुनाक़िद करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। इस इजलास में मागलूर मंडल के साबिक़ा सरपंचों के अलावा दीगर ने शिरकत की। तालीमी शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए बाए बाजों व तुलबा तंजीम के ज़ेरे निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया बंद कामयाब होने का PDSU ज़िला सदर नरेंद्र ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना सतह पर तालीमी शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए तुलबा तंजीम के ज़ेरे निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया बंद कामयाब रहा। इस मौके पर PDSU ज़िले सदर नरेंद्र इस्तीफाई ज़िले नायब सदर नागाराजू ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में KG to PG तक मुफ्त तालीम की फ्राहमी व ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप को फौरी तौर पर जारी करें। वेलफेयर हॉस्टल में ज़ेरे तालीम तुलबा को कॉस्मेटिक मेस चार्जेस में इजाफा किया जाए और हुकूमत प्राइवेट कॉर्पोरेट तालीमी इदारों में फीसों की जायद वसूली को रोके तालीमी शोबे में मखलूआ जायदादों पर फौरी तौर पर तकर्रुरात अमल में लाए जाए और इसी तरह से रियासती सतह पर DEO MEO के अलावा सफाई अमले का तकर्रुर किया जाए और स्कूल में मिड डे मील स्कीम के लिए जायद बजट मुख्तस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PDSU एरिया कमेटी सदर अनिल कुमार, PDSU एरिया कायद इस्तीफाई आर्मर सदर जोहार सिंह व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बरक़ी को बर्खास्त करने की नीयत रखने वाले कांग्रेस पार्टी पर BRS MLC के कविता ने किया बरहमी का इजहार। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कहा कि रियासत तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाई जा रही तो कांग्रेस को कौन सा मसला हो सकता है और राहुल गांधी व कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार रियासत में 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ्राहमी अमल में न लाने की वजह से रियासत तेलंगाना के किसानों को बरक़ी की फ्राहमी में रुकावट डाली गई। वजूहात के बारे में सवाल किया और कहा कि BRS हुकूमत किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के साथ खड़े रहने का इजहार किया। Across the world, not only in the country, Telangana is the first state who started giving incentives, investment incentives to the farmers, which have been applauded by Mr. Swaminathan and many other economists across the country. Today, free power in Telangana to the farmers, quality power, unconditional free power. We are the only state who are giving it in India. Now, Congress party, the other day, Mr. Rahul Gandhi had come to Telangana and had a farmers declaration. He made very, very tall promises. But today Congress exposed its real self. And today Congress is saying only 3 hours of free power is enough for farmers. I am questioning Mr. Rahul Gandhi ji today. Is it really enough? Is that Congress's policy? Do you want to cancel 24 hours free power to farmers and give only 3 hours of power? This is our question to you, Mr. Rahul Gandhi. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बालकुंडल कसमली के वेलपुर मंडल के पास अंसापुर सैलाबी नहर व पाइपलाइन कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे दी जाने वाली मुफ्त बरक़ी को बर्खास्त करने की नीयत रखने वाले कांग्रेस पार्टी पर BRS MLC के कविता ने किया बरहमी का इजहार। किसानों को 24 घंटे के बजाय 3 घंटे मुफ्त बरक़ी देने के ताल्लुक से रेवंत रेड्डी के बयान पर मुत्तहदा जिले के किसानों ने एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया। वो TRS के ज़ेरे निगरानी मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला किया गया नजर आते। जिले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने हैदराबाद के कैंप ऑफिस में मागलूर मंडल के साबिक़ा सरपंचों के साथ दीगर तरक्याती कामों के ताल्लुक से जायजा इजलास मुनाक़िद किया। तालीमी शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए बाएं बाजू तुलबा यूनियन के ज़ेरे निगरानी में जिले में तालीमी इदारों का बंद कामयाब रहा। बेंडोरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। मुख्तलिफ मौज़ूआत में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।